Hello students. So our next chapter is differentiation of vectors. In the starting we have discussed that we will study the vector algebra or the different operations that can be operated on the vector quantities. So the next operation is differentiation of vectors. As in case of scalars, by the first principle, स्केलर्स की अगर बात करें तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या था कि इफ y इज सम फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल x, then rate of change of this dependent variable y, say x is changed by a factor x plus del x, then y changes to y plus del y, or function fx changes to fx plus del x. So this rate of change of the dependent variable with respect to the change in the independent variable for the small changes in independent variable is called the differentiation of this. This can be written as fx plus del x minus of fx divided by del x. Limit del x tends to 0 and is written as f dash x. This rate of change of function of scalar variable with respect to the change in variable is called the differentiation. अगर y की terms में express करें then y changes to y plus del y. So rate of change of final value of the function minus initial value of the function, that is change in the dependent variable, divided by the change in independent variable, that is x plus del x minus x. This change in y is caused by the change in x. For small changes in x, that is limiting case, limit del x tends to 0 is limit del x tends to 0 del y by del x. And for the limiting case or for small changes, these increments or decrements, del y by del x changes to differential operator dy by dx. This was the definition of differentiation of फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल. और इसी तरह से हमने स्टार्टिंग में इवेलुएट किए थे बाय दिस फर्स्ट प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ स्केलर वेरिएबल के डिफरेंशिएशन सच एज एक्स स्क्वेयर कॉस ऑफ एक्स साइन एक्स. ठीक है. लाइकवाइज नाउ वी हैव फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल विद वेक्टर टच, दैट इज वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल. So before going on the differentiation of these functions, let us state what a vector function of scalar variable is. फंक्शन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो फंक्शन हमारे पास क्या था कि fx is called a function from x to y if every element of x can be related uniquely to an element of y. ठीक है. इसी तरह का हमारे पास डेफिनेशन था फंक्शन का कि डोमेन के हर एलिमेंट को हम क्या कर सकें, यूनिकली y के किसी एलिमेंट के साथ रिलेट कर सकें. ठीक है. तो इस रिलेशन को हमने क्या कहा था, एज फंक्शन. ठीक है. इस यूनिकनेस का क्या मतलब था कि एनी टू इमेजेस कैन हैव अ सिंगल इमेज, सॉरी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ x कैन हैव सिंगल इमेज इन y, बट नो टू एलिमेंट्स ऑफ y कैन हैव सेम प्री इमेज इन x. यानी x आपका किन्हीं दो एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकता, वो यूनिकली रिलेट होगा किससे, सम एलिमेंट ऑफ y से. ठीक है. नाउ वेक्टर फंक्शन ऑफ अ स्केलर वेरिएबल. वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल क्या है कि डोमेन के किसी पॉइंट को, से दिस इज सम कैपिटल T with values in small t, say t1, t2, so on tn. If a scalar variable can be related to a vector quantity, every element of this capital T can be uniquely related to a
वेक्टर क्वांटिटी से F1, F2 और सिंपली आई से वेक्टर क्वांटिटी Fi। ठीक है, अगर हम हर पॉइंट ऑफ द डोमेन को किसी वेक्टर क्वांटिटी इन द कोडोमेन से यूनिकली रिलेट कर सकें। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बात करें अगर स्केलर फंक्शन की, तो हमने पहले भी बात की थी कि किसी रूम के अंदर अगर कोई सोर्स ऑफ हीट रखा है, उसकी वजह से डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द रूम के ऊपर, डिफरेंट नहीं हम कहें ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द रूम के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक टेम्परेचर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं T, एंड दैट विल बी सम C e raised to power some function of position vector that is x square plus y square plus z square। यानी हीट सोर्स के जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना दूर जाते जाएंगे टेम्परेचर उतना ही कम होता जाएगा। सो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस रूम can be uniquely related to a temperature value that is a scalar. That means each and every point of this room, that is also a scalar quantity, that is a scalar variable, can be uniquely related to a temperature function that is also a function of, scalar function of scalar variable. So this domain and codomain both are of scalar nature. Can each and every point of the room in terms of position vector x y z की terms में वो क्या है, एक स्केलर है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी ना किसी टेम्परेचर वैल्यू से रिलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर वैल्यू इज आल्सो अ स्केलर फंक्शन। ठीक है, नाउ द अदर केस, वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल। इस बार हमने क्या लिया, कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सोर्स, ठीक है, इस बार हीट सोर्स की जगह हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सोर्स। देन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द रूम कैन बी यूनिकली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस सोर्स। कि हर पॉइंट के ऊपर हमें कोई ना कोई, मान लीजिए हम मैग्नेटिक केस ले लेते हैं, हमने यहाँ कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का सोर्स लिया है, देन ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स फील करेंगे। ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस सोर्स। ठीक है, तो हर पॉइंट को हम इस तरह की एरोज से चेंज कर सकते हैं, यानी हर पॉइंट को हमने किससे रिलेट कर दिया, इन एरोज से रिलेट कर दिया। और ये एरोज क्या है, फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ईच एंड एवरी पॉइंट दैट वाज अ स्केलर वेरिएबल कैन बी यूनिकली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक, in this case magnetic force, that is a vector quantity। तो अगर हम स्केलर वेरिएबल्स को यूनिकली किसी वेक्टर क्वांटिटी से रिलेट कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल। होप आप सबको ये डिफरेंस समझ आया कि जब हम स्केलर को स्केलर से यूनिकली रिलेट कर रहे हैं, यानी यहाँ डोमेन भी सेट ऑफ स्केलर्स है और कोडोमेन भी क्या है, सेट ऑफ स्केलर्स है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज़ दी स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल। और अगर हम स्केलर्स के डोमेन को, यानी ईच एंड एवरी स्केलर इन दी डोमेन को क्या कर रहे हैं, यूनिकली किसी वेक्टर क्वांटिटी से रिलेट कर रहे हैं। जैसे रूम के हर पॉइंट को वो एक स्केलर क्वांटिटी थी इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हर पॉइंट को, दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, हम क्या कर रहे हैं, यूनिकली रिलेट कर रहे हैं किससे, इस एरो से, that is the magnetic force felt at that point due to this magnetic source, that is a vector quantity। तो अगर हम स्केलर वेरिएबल्स को यूनिकली क्या कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी से रिलेट कर सकते हैं, यानी हर स्केलर वेरिएबल के लिए हम उसके करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल, रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। यहाँ t तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, कि अगर एग्जांपल की हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट्स ऑफ द रूम, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज़ द फोर्स फेल्ट एट दैट पॉइंट। ये तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल था, इसी को जनरलाइज किया हमने कि अगर किसी भी स्केलर वेरिएबल के डोमेन को हम यूनिकली क्या कर सकते हैं, किसी वेक्टर फंक्शन के कोडोमेन से रिलेट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल। Now there are two terms, that is scalar field function
and vector field function. Field is the part of space under consideration. कि जिस स्पेस के ऊपर हम स्पेस के पार्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ स्पेस अंडर कंसिडरेशन. ठीक है. इट कैन बी अ कर्व, इट कैन बी अ सरफेस, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ स्पेस. जैसे हम रूम की बात कर रहे थे, तो रूम हमारे पास क्या है, एक वॉल्यूम है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ए होल ऑफ द स्पेस. स्पेस का मतलब हमारे पास दिस होल ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है. उसका कोई भी छोटा पार्ट हमने लिया, दैट कैन बी ए कर्व. ठीक है. कर्व के पॉइंट्स को भी हम कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ हमने कोई सरफेस लिया, ये तो आर्बिट्रेरी ले रहा हूँ, आप कोई भी प्लेन ले सकते हैं. जैसे अगर बात करें ब्लैक बोर्ड की, तो ब्लैक बोर्ड के सारे पॉइंट्स को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पेस. और उसी में हमने क्या किया, रूम को कंसिडर किया. रूम इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ स्पेस. तो जो भी पार्ट ऑफ स्पेस हम अपनी स्टडी के लिए कंसीडर कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, फील्ड. नाउ स्केलर फील्ड फंक्शन, तीनों का आपके पास मीनिंग है. स्केलर का मतलब स्केलर, फील्ड इज़ अ पार्ट ऑफ स्पेस, फंक्शन. अगर हम किन्हीं दो सेट्स के पॉइंट्स को यूनिकली रिलेट कर सकते हैं, या किसी एक सेट के पॉइंट्स को दूसरे सेट के पॉइंट के साथ यूनिकली रिलेट कर सकते हैं, तो ऐसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन. या आप ये कह सकते हैं कि स्केलर फंक्शन को अभी हमने डिफाइन किया कि स्केलर को स्केलर से अगर रिलेट कर दें यूनिकली, तो वो हमारे पास क्या है, स्केलर फंक्शन. नाउ दिस टर्म फील्ड, यानी फील्ड के हर पॉइंट को हम स्केलरली क्या कर सकें, दूसरे सेट के पॉइंट से यूनिकली रिलेट कर सकें. यानी फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस फील्ड, if there is a scalar quantity related to it, it is called a scalar field function. ठीक है. ये आपके पास एक एग्जांपल था स्केलर फील्ड फंक्शन का. ठीक है. क्योंकि रूम हमारे पास क्या है, पार्ट ऑफ द स्पेस. ठीक है, या रीजन ऑफ द स्पेस. ठीक है. इसके हर पॉइंट को हमने क्या किया, यूनिकली एक स्केलर वैल्यू से रिलेट किया, दैट इज़ अ स्केलर फील्ड फंक्शन. यहाँ फील्ड का मतलब सिर्फ यही है कि जो पार्ट ऑफ स्पेस हम कंसिडर कर रहे हैं, उसके हर पॉइंट को आप क्या कर सकें, किसी ना किसी स्केलर वैल्यू से यूनिकली रिलेट कर सकें. सो इज़ द वेक्टर फील्ड फंक्शन. अगर फील्ड के हर पॉइंट को, जैसे हमने रूम के पॉइंट की बात की, उसी तरह से आप सरफेस के पॉइंट की भी बात कर सकते हैं कि अगर सरफेस के हर पॉइंट को, सरफेस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ स्पेस और यू कैन से फील्ड, अगर इसके हर पॉइंट को हम क्या कर सकें, किसी ना किसी वेक्टर क्वांटिटी से रिलेट कर सकें. ठीक है. जैसे हमने उसी रूम के फ्लोर के हर पॉइंट को कंसिडर किया, लेटिंग कि हमारा जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कहाँ है, रूफ़ के ऊपर है. कि हमने मान लिया कि यहाँ रूफ़ के ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस करने वाला या कोई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ रखने वाला सोर्स है. देन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लोर के ऊपर, वैसे तो आप रूम के किसी भी पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ स्पेस, रूम के हर पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेंगे. ठीक है. सो every point of this floor or every point of the room can be uniquely related to the vector quantity, that is the electrostatic force felt at that point due to this source, is called the vector field function. Clear है? Now next is limit and continuity of vector function. ठीक है. इसको मैं साथ के साथ रिलेट कर रहा हूँ आपके स्केलर फंक्शंस के साथ, क्योंकि वो सारा पार्ट आपने कैलकुलस में पढ़ रखा है कि स्केलर फंक्शंस के लिए अगर लिमिट की बात करें, मैं इसको आपकी सारी प्रीवियस नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा हूँ. जब हम 11th-12th में तो हम इस तरह से डिफ़ाइन करते थे कि कोई भी स्केलर फंक्शन अगर f(x) हमें गिवन है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू या अप्रोचिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू और अप्रोचिंग वैल्यू एट सम पॉइंट, जिसको हम किस तरह से लिखते थे कि लिमिट x टेंडिंग टू a, यानी x जब a को अप्रोच करे तो हमारी जो f(x) की लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी इफ़ आवर लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. यानी या आप लेफ़्ट से अप्रोच करें या राइट से अप्रोच करें, दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जिनको हम रेस्पेक्टिवली इस तरह से लिखते थे कि लिमिट ऑफ x a माइनस एफ एक्स, यानी लेफ़्ट से आप अप्रोच करें,
या राइट से आप अप्रोच करें। चलिए ज्योमेट्रिकली भी बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल है तो प्लेन के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, एफ एक्स इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट एक्स। ठीक है, यहाँ जैसे ही कोई पॉइंट की बात करें एक्स इज़ इक्वल टू ए, तो चाहे तो आप लेफ़्ट से इस ए को अप्रोच करें, एक्स इज़ अप्रोचिंग टू ए। इसका मतलब क्या है कि हम एक्स पॉइंट को क्या कर रहे हैं, सॉरी इस एक्स इज़ इक्वल टू ए पॉइंट को क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं। इसी तरह से ए प्लस का मतलब क्या है कि अब हम क्या कर रहे हैं, इस एक्स इज़ इक्वल टू ए पॉइंट को राइट से अप्रोच कर रहे हैं। एफ एक्स इज़ ऑलवेज अ कर्व, क्योंकि फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो चाहे आप लेफ़्ट से अप्रोच करें चाहे राइट से अप्रोच करें, यहाँ जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे जैसे एक्स ए को अप्रोच करे, एफ एक्स किसको अप्रोच करना चाहिए, अपनी लिमिटिंग वैल्यू को। ठीक है, दूसरी आपने इसी की डेफिनेशन पढ़ी कैलकुलस के अंदर, दैट इज़ द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है, या एक्चुअल में वहाँ हम डिस्टेंस कंसेप्ट का यूज़ कर रहे हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या है कि एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इस फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, या यहाँ हम स्केलर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इस स्केलर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी से एल। ठीक है, यहाँ एल का मतलब क्या है, ये लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, दिस इज सम एल कि एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू, ये एक्चुअल इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू नहीं है, जब हम लेफ़्ट और राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे फंक्शन की वैल्यू है। आप इसको इससे कंफ्यूज मत करना, हम ये ए पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पास क्या होगी, एफ ऑफ ए। हम जब लेफ़्ट और राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो जो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू है उसको हमने नाम दिया सम रियल वैल्यू एल। तो हमारे एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो एल के इक्वल होगी इफ़, पहले मैं वर्ड्स में बात कर रहा हूँ फिर एप्सिलॉन डेल्टा की टर्म्स में बात करूँगा। लिमिटिंग वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, जब एक्स जैसे जैसे ए को अप्रोच करेगा, एफ एक्स किसको अप्रोच करेगा, इस लिमिटिंग वैल्यू एल को अप्रोच करेगा। हम एल को एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू कहेंगे अगर जैसे जैसे एक्स ए के नज़दीक जाता जाएगा, एफ एक्स किसके नज़दीक जाता जाएगा, एल के नज़दीक जाता जाएगा। मान लीजिए हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे जैसे x क्या कर रहा है, a की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो fx है, fx का मतलब फंक्शन, वो किसकी तरफ जा रहा है, इस लिमिटिंग वैल्यू की तरफ जा रहा है। तो इस l को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू। इसी को एप्सिलॉन डेल्टा की टर्म्स में डिफाइन करते हैं कि फॉर ईच डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं फॉर ईच पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डिस्टेंस डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, हर एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। अब मैथ में ये हमने डिस्टेंस को नाम दिए हैं एप्सिलॉन और डेल्टा। इसमें आप कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट मत लीजिए, इसका मतलब क्या है कि हर डिस्टेंस एप्सिलॉन के लिए एक ऐसी डिस्टेंस डेल्टा, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें आ गई कि एक्स ए को अप्रोच कर रहा है और एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, एल को अप्रोच कर रहा है। तो हमने क्या किया, दो डिस्टेंसेस कंसिडर की हैं, एफ एक्स के लिए एप्सिलॉन और एक्स के लिए डेल्टा। So if for each positive epsilon greater than 0, that is for each positive epsilon, there exists a delta depending upon epsilon. ठीक है, that is also a positive or distance such that whenever x minus a is less than delta, इसको आप डिस्टेंस की टर्म्स में कह सकते हैं। ठीक है, जब भी हम नंबर लाइन के ऊपर डिस्टेंस की बात करते हैं कि ये अगर दो पॉइंट्स हैं, -1, 2 एंड 1 एंड 2, ठीक है, तो अगर इन दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ 3 यूनिट्स। इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं कि इफ़ दिस इज़ x एंड दिस इज़ y, then this distance between x and y can be written as modulus of x minus y, that is -1, -2, -3 का modulus, that is 3, और 2 minus of -1, that is 3। तो हम डिस्टेंस को मैथ में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि x की a से डिस्टेंस जब भी लेस देन डेल्टा होगी, एफ एक्स की डिस्टेंस हमारे l से क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी। देखिए, क्योंकि हमने डेल्टा को एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता हुआ बताया, तो जैसे ही एप्सिलॉन 0 को टेंड करेगा, 0 को टेंड करने का मतलब एफ एक्स और एल के बीच डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी।
ठीक है, यानी एफ एक्स जब एल को अप्रोच कर जाएगा तो एक्स किसको अप्रोच कर जाएगा, ए को अप्रोच कर जाएगा। और यही हमारी डेफिनेशन थी किसकी, लिमिटिंग वैल्यू की। तो जैसे ही एफ एक्स माइनस एल इज टेंडिंग टू जीरो, दैट मीन्स एक्स माइनस ए इज आल्सो टेंडिंग टू जीरो। जैसे जैसे एफ एक्स एल से दूर होता जाएगा, अपार्ट होता जाएगा, वैसे ही हमारा, क्योंकि डेल्टा एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा ए से। दैट इज़ द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, कि किसी फंक्शन एफ एक्स की किसी पॉइंट ए के ऊपर अप्रोचिंग या लिमिटिंग वैल्यू एल रहेगी इफ़ फॉर ईच पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट व्हेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, एफ एक्स माइनस एल इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर है? इसी को हम एक्सटेंड करते हैं कंटिन्यूटी तक। कंटिन्यूटी की क्या डेफिनेशन थी, किसी फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल या स्केलर की बात कर रहे हैं, अब तक हम वेक्टर्स के ऊपर नहीं गए हैं, इसको हम किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस कहेंगे अगर उसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे और वो किसके इक्वल हो, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। ध्यान हो तो 11th-12th में हम इसको इस तरह से करते थे कि लिमिटिंग वैल्यू का मतलब तो क्या है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और वो किसके इक्वल हो, हमारी राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। यानी इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दिस फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए, देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट ए। ठीक है, इसको फर्दर हमने मैथमेटिकली इस तरह से लिखा था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यानी हमारी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वो किसके इक्वल हो, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो, देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। इसी को अगर एप्सिलॉन डेल्टा की टर्म्स में बात करें तो लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट करे ही करे और वो किसके बराबर हो, एफ ऑफ ए के बराबर हो। यानी इस बार एल किसके बराबर हो, एफ ऑफ ए के बराबर हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ सिर्फ एल को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एफ ऑफ ए से रिप्लेस कर देंगे। यानी ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए if for each positive epsilon there exists a delta depending upon epsilon that is also positive such that whenever x minus a is less than delta, यानी x जैसे जैसे a को अप्रोच करे, एफ एक्स पहले केस में तो किसको अप्रोच कर रहा था, अपनी लिमिटिंग वैल्यू को, लेकिन इस बार ये लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, हमारी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। सो एफ एक्स अप माइनस एफ ऑफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन। यानी जब भी x a को अप्रोच करे तो एफ एक्स किसको अप्रोच करे, एफ ऑफ a को अप्रोच करे। ठीक है, वेन एवर एक्स माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा, एफ एक्स माइनस एफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन। क्योंकि डेल्टा एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो एप्सिलॉन को जितना ज़्यादा छोटा आप करते जाएंगे डेल्टा भी उतना छोटा होता जाएगा। इसको मैं वर्ड्स में कहूँ तो एफ एक्स जितना ज़्यादा नज़दीक जाएगा एफ ए के, एक्स उतना ही नज़दीक जाएगा किसके, ए के। अपोजिट सेंस में x जितना ज़्यादा दूर होगा a से, एफ एक्स उतना ही ज़्यादा दूर होगा किससे, एफ ए से। दैट डिटरमाइंस द कंटिन्यूटी ऑफ द वेक्टर फंक्शन, की उसका ग्राफ हमारे प्लेन के अंदर कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। क्लियर है? लिमिट एंड कंटिन्यूटी का जितना भी अलजेब्रा था आपका स्केलर फंक्शंस का, कि लिमिट को आप प्लस और माइनस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो सारा आपका वेक्टर्स में भी होल्ड करेगा। सो नाउ वी विल डिफाइन लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल। बिल्कुल सेम लाइंस के लिए इसके ऊपर आपके पास लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल है, जैसा स्केलर फंक्शन में था, इसीलिए मैंने रिकॉल करवाया सारा। लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल। लेट अस गिवन अ वेक्टर फंक्शन f of a scalar variable t. ठीक है, then at any point t approaching to t naught, ft is said to have a limiting value, that is some vector a। क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, वेक्टर है, तो लिमिटिंग वैल्यू भी क्या होगी, हमारी वेक्टर की टर्म्स में होगी। जो l हम लिख रहे थे स्केलर वेरिएबल में, वही हमारे पास अब क्या है, वेक्टर a। तो किसी फंक्शन ऑफ स्केलर, वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इफ़ t अप्रोचिंग टू t नॉट, इफ़ एंड ओनली इफ
वही काम आप कर सकते हैं यहाँ कि लिमिट t टेंड्स टू t नॉट एफ टी एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जिस्ट में अब आप लेफ़्ट और राइट का कंसेप्ट ले सकते हैं। अदरवाइज जो हमारे पास जनरल डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, दिस लिमिटिंग वैल्यू इज सेड टू एग्जिस्ट इफ़ फॉर ईच पॉजिटिव एप्सिलॉन, if for each positive epsilon there exists a delta, for each positive epsilon if there exists a delta depending upon epsilon that is also greater than 0, मैंने इन दोनों को डिस्टेंसेस कहा था, ठीक है, इसीलिए ये दोनों हम क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0, ठीक है। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट वेन एवर this t approaches to t naught, ft approaches to this limiting value a, ठीक है। जैसे जैसे t t नॉट के नज़दीक जाता जाएगा ft अपनी लिमिटिंग वैल्यू a के नज़दीक जाता जाएगा, ठीक है। सो वेन एवर t माइनस टी इज़ लेस देन डेल्टा ft माइनस एफ ए इज़ ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, दिस डिटरमाइंस द existence of limit of function vector function f of scalar variable t at a point t is equal to t naught। हम क्या कहेंगे कि t is equal to t naught के ऊपर हमारे वेक्टर फंक्शन f की लिमिटिंग और अप्रोचिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है इफ़ for each positive epsilon we can find a delta depending upon epsilon such that whenever t minus t naught is less than delta ft minus a is less than epsilon, and then this a is called the limiting value of function at point t is equal to t naught। सेम लाइंस के ऊपर आपके पास कंटिन्यूटी जैसे हमने स्केलर फंक्शन में की थी कि अब लिमिटिंग वैल्यू किससे चेंज हो जाएगी, फंक्शनल वैल्यू से चेंज हो जाएगी। सो t इज़ इक्वल टू टी नॉट के ऊपर हम वेक्टर फंक्शन एफ टी को कंटिन्यूस कहेंगे इफ़ फॉर ईच पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट वेन एवर टी अप्रोचेज टू टी नॉट this vector function of scalar variable ft approaches to its functional value at point t naught, कि इस बार उस लिमिटिंग वैल्यू a को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, उसी पॉइंट के ऊपर फंक्शनल वैल्यू से, दैट इज़ ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। सो if for each positive epsilon there exists a delta depending upon epsilon such that whenever t minus t naught is less than delta ft minus ft naught is always less than epsilon, then this vector function of scalar variable t is said to be continuous at point t is equal to t naught, ठीक है। तो जो स्केलर फंक्शंस के लिए लिमिट और कंटिन्यूटी थी सेम आपके पास यहाँ है, सिर्फ नेचर चेंज हो गया आपका कि अब हम किस में डील कर रहे हैं, वेक्टर फंक्शंस में डील कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट अलजेब्रा आपका जितना भी था कि लिमिट ऑफ सम वेक्टर फंक्शन एफ टी प्लस जी टी, प्लस और माइनस दोनों ही ले लेते हैं, t इज़ टेंडिंग टू t नॉट, लिमिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लस के अलॉन्ग, माइनस के अलॉन्ग, डॉट के अलॉन्ग, डिवीजन के अलॉन्ग, ठीक है। लिमिट t इज़ टेंडिंग टू t नॉट, दिस कैन बी रिटन एज एफ टी प्लस लिमिट t इज़ टेंडिंग टू t नॉट जी टी, ठीक है। इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई में है तो लिमिट अलग अलग लगा के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर डिवीजन में है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट t इज़ टेंडिंग टू t नॉट एफ टी बाई जी टी, देन लिमिट आप अलग अलग लगा सकते हैं किसके ऊपर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के ऊपर। क्लियर है? सो अगर हम वेक्टर फंक्शन को कंसिडर करें f एज अ फंक्शन ऑफ t बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम उसके ith, jth और kth कंपोनेंट की टर्म्स में लिख देते हैं, दैट इज सम स्केलर कंपोनेंट f1t
इन द डायरेक्शन x दैट इज आई कैप। जिस तरह से किसी भी वेक्टर को आप लिख रहे थे वेक्टर a एज a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, जहाँ a1 a2 a3 क्या थे, स्केलर कंट्रीब्यूशन अलोंग x y एंड z, और i j k किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, डायरेक्शन अलोंग x y एंड z। तो उसी तरह से किसी भी वेक्टर फंक्शन को उसकी कंपोनेंट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, f1 t i कैप f2 t j कैप प्लस f3 t k कैप। f1t तो क्या है, x डायरेक्शन में उस वेक्टर फंक्शन का स्केलर कंट्रीब्यूशन, कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है x डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड y डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड z डायरेक्शन में, एंड i j k डिनोट्स द डायरेक्शन अलोंग x y एंड z। ठीक है, तो लिमिट की अगर बात करें तो ये इंडिविजुअल वेक्टर्स भी अपने आप में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जहाँ मैग्नीट्यूड तो क्या है f1t और डायरेक्शन क्या है i कैप। यही हमारी वेक्टर की डेफिनेशन थी। सो लिमिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इफ़ लिमिट t टेंड्स टू t नॉट एफ टी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी अभी हमने रिजल्ट किया था कि f प्लस जी के ऊपर अगर अप्लाई कर रहे हैं, यानी इसके ऊपर अगर कंप्लीट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम प्लस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम ये किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, f1t आई कैप प्लस f2t जे कैप प्लस f3t के कैप। तो प्लस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी लिमिट t टेंड्स टू t नॉट f1t आई कैप दैट इज़ अ स्केलर लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, जिस तरह से स्केलर फंक्शन के ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते थे, वही लिमिटिंग केस आपके पास आ गया इनटू आई कैप प्लस सिमिलरली लिमिट t टेंड्स टू t नॉट f2t जे कैप। ये तो वेक्टर है अपने आप में, लेकिन अगर सिर्फ f2t की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, एक स्केलर फंक्शन ऑफ t। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल लिख देता हूँ अभी, प्लस लिमिट t टेंड्स टू t नॉट f3t k कैप। जैसे हमने कोई वेक्टर फंक्शन ऑफ t लिखा एज t क्यूब आई कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस t जे कैप प्लस सम कॉस t k कैप। तो यहाँ ये तो अपने आप में वेक्टर है, लेकिन अगर सिर्फ टी क्यूब की बात करूँ, यानी f1t की बात करूँ, तो वो क्या है, एक स्केलर फंक्शन है। तो जिस तरह से स्केलर फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करते थे, आप लिमिट अप्लाई कीजिए इनटू आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, उसी तरह से कंटिन्यूटी के लिए भी ये होल्ड करेगा। ठीक है, कंटिन्यूटी के केस में आपके पास फंक्शन f को हम t नॉट के ऊपर कंटिन्यूस कहेंगे। दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट t नॉट इफ़ f1t f2t एंड f3t, जो हमारे ये कंपोनेंट्स थे, ये तीनों अगर क्या हैं, कंटिन्यूस हैं एट t इज़ इक्वल टू t नॉट। इसीलिए मैंने वो स्केलर का केस आपको बताया था, क्योंकि वेक्टर फंक्शन अपने आप में क्या है, एक सम्ड अप क्वांटिटी है। ठीक है, विद डायरेक्शन वेक्टर्स i j एंड k एंड विद स्केलर फंक्शंस f1t f2t एंड f3t। ठीक है, तो उसको अगर हम ब्रेक कर लें पार्ट्स के अंदर, तो वो किसके ऊपर चला जाएगा, फिर से स्केलर फंक्शंस के ऊपर चला जाएगा। और स्केलर फंक्शंस की कंटिन्यूटी हम डील कर चुके हैं कि फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ t को हम कंटिन्यूस कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव भी स्केलर के केस में हमने पढ़ा था। मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्टिंग में डिफाइन भी किया था। ठीक है, उस सारे को अब हम किसके ऊपर लेके आते हैं, वेक्टर फंक्शंस के ऊपर लेके आते हैं, कि हमने t वेरिएबल का कोई फंक्शन कंसिडर किया, दैट इज़ ft। ठीक है, क्योंकि t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो t में अगर हम स्लाइड सा चेंज करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग f के अंदर भी हमारा चेंज हो जाएगा, दैट इज़ f चेंजेस टू ft प्लस डेल t। ठीक है, इस वेक्टर फंक्शन को अगर हम कुछ नाम दे दें, से दिस वेक्टर फंक्शन इज r, तो फंक्शन हमारा ft से चेंज हो गया किस में, ft प्लस डेल t में, यानी हमारा वेक्टर फंक्शन r किस में चेंज हो गया, r प्लस डेल r में। क्योंकि स्लाइट चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो t में अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ft में भी जो कोरस्पॉन्डिंग चेंज होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो अगर ft हमारे पास वेक्टर फंक्शन r है, देन द ट्रांसफॉर्म वेक्टर फंक्शन ft प्लस डेल t वो क्या होगा, सम r प्लस डेल r। ठीक है, हम इसको इस तरह से कार्टेशियन सिस्टम में डील करते हैं कि मान लीजिए ये हमारा वेक्टर r था, दैट इज सम वेक्टर OP, बुक में आपको दे रखा है ये फिगर,
इसको हमने स्लाइड सा चेंज कर दिया। वेक्टर में चेंज का मतलब ये है आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, आप मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं, या स्लाइड चेंज कर सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इस ओ पी को हमने क्या कर दिया, स्मॉल सा चेंज कर दिया टू सम ओ क्यू। तो ये हमारा चेंज हो गया किस में, आर प्लस डेल आर में। ठीक है, अब अगर हम बात करें पी क्यू वैक्टर की, तो बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपके पास क्या था, या आप ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर पी क्यू विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ये भी आपका डेराइव हुआ था कहाँ से, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, दैट सेज ओ पी प्लस पी क्यू, दैट इज टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर represents two sides of the triangle, then their sum or resultant is given by the third side of the triangle, that is OP plus PQ is equal to vector OQ. ठीक है, this can be rearranged as PQ is equal to OQ minus OP. OQ is position vector of Q minus position vector of P. ठीक है, तो this is del R. ठीक है, तो जैसे ही हमने t को स्लाइड सा चेंज किया, r इज़ अ फंक्शन ऑफ t एंड r प्लस डेल आर इज़ अ फंक्शन ऑफ t प्लस डेल टी। ठीक है, तो हमारा वेक्टर किस रेट से चेंज हुआ, दैट इज़ डेल आर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन की रेट ऑफ चेंज आपके पास क्या है, या चेंज क्या है आपके पास, दैट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज़ r प्लस डेल आर माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट इज़ r। ठीक है, डिवाइडेड बाय द चेंज इन वेरिएबल, क्योंकि रेट की बात कर रहे हैं हम डेरिवेटिव में, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द स्केलर वेरिएबल। जो हमारा f t का वेरिएबल था, तो f किस तरह से चेंज हो रहा है जब हम t के अंदर चेंज कर रहे हैं, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन दिस वेरिएबल t इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन, दैट इज t प्लस डेल टी माइनस टी। और ये हम किसके लिए कंसिडर करते थे, स्मॉल चेंजेस की, एज इन केस ऑफ स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल, दिस लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। ठीक है, सो दिस रिड्यूसेस टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 del r by del t, and these increments can be changed by the differential operator if this increment or decrement are quite small, then this is dr by dt. This is called the differentiation of vector function with respect to the scalar variable. ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, that is f dash t is the rate of change of the vector function, that is the transformed value of the function minus the original value of the function divided by t plus del t minus t, that is the change in variable. ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएशन के भी आपका एल्जेब्रा वही रहेगा मोस्टली। ठीक है, बाकी जो, क्योंकि ऑपरेशंस हमारे पास प्रोडक्ट के केस में u इंटू वी की बजाय, कि स्केलर्स के केस में तो हम क्या लिखते थे, u इंटू वी एंड u बाई वी। यहाँ वेक्टर के डिवीजन से तो कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट हमारे पास दो तरह का था, कि या तो u डॉट v की टर्म्स में या u क्रॉस v की टर्म्स में, तो वो सारे रिजल्ट्स हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है किसी वेक्टर फंक्शन f ऑफ स्केलर वेरिएबल t का, देन दिस डिफरेंशिएशन d बाई डी टी ऑफ वेक्टर फंक्शन f प्लस z कैन बी रिटन एज d बाई डी टी ऑफ f प्लस d बाई डी टी ऑफ z। इसको भी हम प्रूव करेंगे। अभी के लिए एक बार आप इसको एज इट इज़ कि डिफरेंशिएशन को जैसे स्केलर वेरिएबल में हम क्या करते थे, u प्लस वी अगर लिख रखा है, जैसे टी क्यूब प्लस टी स्क्वेयर लिख रखा है, तो टी क्यूब का अलग से डिफरेंशिएशन कर देंगे, टी स्क्वेयर का अलग से डिफरेंशिएशन कर देंगे और दोनों को सम अप कर देंगे। ठीक है, तो इसी रूल का यूज़ करते हुए हम किसी भी वेक्टर फंक्शन को उसकी कंपोनेंट फॉर्म के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एफ टी की कंपोनेंट फॉर्म क्या थी, एफ वन टी आई कैप प्लस एफ टू टी जे कैप प्लस एफ थ्री टी के कैप। इस सारे फंक्शन का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अगर कुछ वेक्टर फंक्शंस के सम का डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन करके सम कर सकते हैं, दैट इज़ डी बाई डी टी ऑफ एफ वन टी आई कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ एफ टू टी जे कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ
f3t k कैप। यहाँ आई जे के का टी से कोई रिलेशन नहीं है, ये एज इट इज़ रहेंगे। यानी एक तरह से आपको इन स्केलर कंपोनेंट्स का f12 f2t एंड f3t का डिफरेंशिएशन करना है टी के विद रिस्पेक्ट, और साथ में क्या एसोसिएट कर देना है डायरेक्शन वेक्टर्स आई जे एंड के। कि मान लीजिए हमें कोई वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी गिवन है, जैसे अभी अभी हमने लिखा था कि टी क्यूब आई कैप प्लस टी स्क्वेयर प्लस टी जे कैप प्लस सम कॉस टी के कैप। तो डी बाई डी टी ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा आपके पास, सम के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और सम में आई जे के ऊपर टी का कोई रोल नहीं है, दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ टी। ठीक है, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ एफ वन टी विल बी 3t स्क्वेयर आई कैप प्लस 2t प्लस 1 जे कैप माइनस साइन टी के कैप। ये बहुत ही आसान चीज़ है। वेक्टर के केस में आपको क्या करना है, जो स्केलर कंपोनेंट दे रखे हैं f1t f2t एंड f3t, उनका डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, अब आ जाइए इस रिज़ल्ट के ऊपर, इसको हम प्रूव करते हैं कि बी डी बाई डी टी ऑफ एफ प्लस जी को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एफ प्लस डी बाई डी टी ऑफ जी। डेफिनेशन क्या थी, अभी अभी हमने लिखी थी, एक मिनट। हाँ, डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द स्केलर वेरिएबल। ठीक है, तो एफ और जी को हम टी का फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, देन दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ प्लस जी। ठीक है, एफ प्लस जी हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है। हम मान लेते हैं कि हमने टी में स्लाइड सा चेंज किया, टी प्लस डेल टी। सिंस एफ और जी क्या हैं, टी के फंक्शंस हैं, तो एफ में भी स्लाइड सा चेंज होगा, दैट इज़ एफ प्लस डेल एफ, और इसी तरह से जी में भी चेंज होगा, दैट इज़ जी प्लस डेल जी। तो अब आ जाइए डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, दैट इज़ लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हमारा फंक्शन क्या है, एफ प्लस जी, लेकिन एफ तो किस में चेंज हो गया, एफ प्लस डेल एफ में, और जी किस में चेंज हो गया, जी प्लस डेल जी में। तो एफ प्लस जी की जो ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू थी वो क्या होगी, एफ प्लस डेल एफ प्लस डेल जी माइनस जी ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या थी, एफ प्लस जी डिवाइडेड बाय द चेंज इन वेरिएबल। वेरिएबल क्या था, टी, उसकी ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू क्या थी, टी प्लस डेल टी, और उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, माइनस टी। ये समझ में आया आपको। जिस तरह से हम क्या करते थे, y प्लस डेल वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, तो उसी तरह से f प्लस जी की ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू कि जब हमने t में चेंज किया तो f और g दोनों में कुछ कुछ चेंज हुआ। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन कंपोजिट फंक्शन f प्लस जी विल बी f प्लस डेल एफ प्लस डेल जी माइनस द ओरिजिनल value of the function, that is f plus g. This is the change in the function f plus g divided by the change in the variable, that is t plus del t minus t. ठीक है, तो ये f minus of f, z minus of z. ठीक है, this reduces to limit del t tends to 0 del f plus del z divided by del t can be written as लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल एफ बाई डेल टी। लिमिट एल्जेब्रा अभी अभी हमने पढ़ा था कि एफ प्लस जी के ऊपर अगर लिमिट लगा रहे हैं तो आप अलग अलग के ऊपर भी लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर को आप दोनों के नीचे रख सकते हैं, दैट इज़ लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल जी बाई डेल टी। ठीक है, दैट विल बी, दीज आर दी स्मॉल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स इन द लिमिटिंग केस, दीज ट्रांसफॉर्म टू द डिफरेंशियल ऑपरेटर, दैट इज़ डी एफ बाई डी टी प्लस डी जी बाई डी टी। तो आप डिफ्रेंशिएशन f प्लस जी को क्या लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू t प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t। नेक्स्ट आर दी अलजेब्रा फॉर डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस। पहला तो हमने लिखा क्या, डी बाई डी टी ऑफ f प्लस जी can be written as differentiation of f plus differentiation of z। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें गिवन है d बाई डी टी ऑफ f डॉट z
इस बार डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शन गिवन है, तो हम डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे, किसी एक का डिफरेंशिएशन जो u इंटू वी में आप यूज़ करते थे, डी बाई डी टी ऑफ एफ डॉट जी प्लस इस बार एफ एज इट इज़ टी बाई डी टी ऑफ जी। ये भी आप उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। वो सारी कंसिड्रेशन सब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि टी में अगर स्लाइड सा चेंज करें टी प्लस डेल टी, ठीक है, तो आपके पास एफ में जो चेंज होगा वो क्या होगा, एफ प्लस डेल एफ। ये सभी जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में सभी में होल्ड करेंगे। z इज़ ट्रांसफॉर्म टू z प्लस डेल जी व्हेनेवर दिस डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो, यानी टी में अगर कोई भी चेंज ना करें या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज करें तो डेल एफ विल टेंड टू ज़ीरो एंड डेल जी आल्सो टेंड्स टू ज़ीरो। यानी टी में अगर आप क्या करेंगे, नेग्लिजिबली स्मॉल चेंज करेंगे तो चेंज इन एफ और चेंज इन जी भी क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, इन सारी कंसिड्रेशंस को यूज़ करके हम सिर्फ डेफिनेशन लगा देते हैं। ओरिजिनल फंक्शन क्या है, एफ डॉट जी, ठीक है, ट्रांसफॉर्म फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ प्लस डेल एफ डॉट जी प्लस डेल जी, क्योंकि अब एफ चेंज हो गया किस में, एफ प्लस डेल एफ में, और जी किस में चेंज हो गया, जी प्लस डेल जी में। ठीक है, ये आप क्रॉस के लिए भी होल्ड करेगा, मैं साथ के साथ लिख देता हूँ, किसी एक को हम प्रूव कर लेते हैं, एफ क्रॉस जी, क्योंकि हमारे पास एफ क्रॉस जी क्या था, एंटी कम्यूटेटिव था, यानी ऑर्डर मैटर करता था, तो यहाँ आप ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दैट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ क्रॉस जी। यहाँ आप कह सकते हैं कि जी डॉट डी बाई डी टी ऑफ एफ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव था, लेकिन यहाँ आप ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रूल वही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ क्रॉस जी एज इट इज़ प्लस एफ एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ जी। ठीक है, इसके प्रूफ में भी यही डिफरेंस आएगा कि जहाँ डॉट है हम वहाँ क्रॉस ले लेंगे, या क्रॉस है तो डॉट ले लेते हैं। ठीक है, चलो क्रॉस को प्रूव कर देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ क्रॉस जी, ये हमारे पास क्या डेफिनेशन थी कि टी में अगर स्लाइड सा चेंज करें, दैट इज़ डेल टी इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन वेरिएबल। तो चेंज के लिए हमें क्या चाहिएगा, होगा एफ क्रॉस जी की ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू। एफ क्रॉस जी की ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू वो हमारे पास क्या है, एफ प्लस डेल एफ क्रॉस जी क्रॉस डेल जी माइनस ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, एफ क्रॉस जी डिवाइडेड बाई चेंज इन द वेरिएबल। चेंज इन वेरिएबल टी को हमने किस में चेंज किया, टी प्लस डेल टी में, माइनस ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट इज़ टी। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट, दैट विल बी लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो। क्रॉस इज डिस्ट्रीब्यूटिव अलॉन्ग, सॉरी जी प्लस डेल जी, क्रॉस इज डिस्ट्रीब्यूटिव अलॉन्ग प्लस, तो इस पेयर ऑफ एफ प्लस डेल एफ एंड जी प्लस डेल जी को आप क्रॉस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पहला टपल हमारे पास क्या आएगा, एफ क्रॉस जी, सेकेंड टपल क्या आएगा, डेल एफ क्रॉस जी, इसी तरह से एफ क्रॉस डेल जी, एंड लास्टली डेल एफ क्रॉस डेल जी, एंड माइनस में हमारे पास क्या था, एफ क्रॉस जी डिवाइडेड बाई डेल टी। ये पेयर आपका कैंसिल आउट। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, लिमिट को आप प्लस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अभी अभी हमने लिमिट अलजेब्रा में पढ़ा था। सो लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो, डेल एफ क्रॉस जी बाई डेल टी। डेल टी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को आप क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर भी रख सकते हैं, किसी एक के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो दैट इज़ डेल एफ बाई डेल टी क्रॉस जी प्लस सेकेंड टपल लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो, एफ क्रॉस डेल जी बाई डेल टी। ठीक है, प्लस लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो, डेल एफ बाई डेल टी क्रॉस डेल जी। ठीक है, अब हमने लिखा कि जब भी डेल टी ज़ीरो को टेंड करेगा तो डेल एफ और डेल जी किसको टेंड करेंगे, ज़ीरो को टेंड करेंगे, और ये जो आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स हैं ये किस में चेंज हो जाएंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स में। डेल एफ बाई डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ बाई डी टी,
क्रॉस जी प्लस इसी तरह से एफ क्रॉस डी जी बाई डी टी प्लस, अब ये तो आपका चेंज हो जाएगा किसमें, डी एफ बाई डी टी में, लेकिन जब भी डेल टी ज़ीरो को टेंड करेगा तो डेल जी किसको टेंड करेगा, ज़ीरो को। ठीक है, तो ये वेक्टर हमारे पास ज़ीरो, तो ये पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यही हमें प्रूव करना था कि डी बाई डी टी ऑफ एफ क्रॉस जी कैन बी रिटन एज डी एफ बाई डी टी क्रॉस जी प्लस एफ क्रॉस डी जी बाई डी टी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के प्रूफ में भी सिर्फ जहाँ जहाँ क्रॉस है आपके पास वहाँ डॉट आ जाएगा, बाकी का आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट है डी बाई डी टी ऑफ फाई एफ, वेयर फाई इज अ स्केलर फंक्शन एंड एफ इज अ वेक्टर फंक्शन। ठीक है, इस बार क्या है, फाई आपके पास एक स्केलर फंक्शन है टी का, और एफ क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। ठीक है, फाई को मैं लिख देता हूँ फाई एज अ फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी एंड एफ एज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। ठीक है, फिर वही बात कि टी में अगर हम स्लाइड सा चेंज करेंगे टी प्लस डेल टी, तो फाई में भी स्लाइड सा चेंज होगा, दैट इज़ फाई प्लस डेल फाई, और वेक्टर फंक्शन एफ में भी स्लाइड सा चेंज होगा, दैट इज़ वेक्टर फंक्शन एफ प्लस डेल एफ। ठीक है, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन फाई एफ विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन वेरिएबल टी प्लस डेल टी, इसको हम निकालते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फाई एफ, तो फाई एफ की ट्रांसफॉर्म वैल्यू हमारे पास क्या होगी, फाई प्लस डेल फाई इंटू एफ प्लस डेल एफ। यहाँ स्केलर को आप वेक्टर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर, माइनस द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वो हमारे पास क्या थी, फाई एफ, डिवाइडेड बाई चेंज इन द वेरिएबल, दैट इज टी प्लस डेल टी इज़ द ट्रांसफॉर्म वैल्यू माइनस टी इज़ द ओरिजिनल वैल्यू, और आप चेंज क्या कर रहे हैं, बहुत स्मॉल कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज़ द लिमिटिंग केस, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो। इसको आप लास्ट पार्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं कि टेकिंग द लिमिटिंग केस डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, और लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो, ये प्रोडक्ट हमने किया, फाई एफ स्केलर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फाई एफ फाई डेल एफ प्लस डेल फाई एफ प्लस डेल फाई इंटू डेल एफ माइनस फाई एफ, ये दोनों आपके कैंसिल आउट, डिवाइडेड बाई डेल टी, बिल्कुल सेम आर्ग्यूमेंट, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो, फाई डेल एफ बाई डेल टी, लिमिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्लस के अलॉन्ग, और डेल टी को किसी एक के साथ रख लिया, या तो फाई के साथ या डेल एफ के साथ, क्योंकि हमें इसको चेंज करना है डी एफ बाई डी टी की टर्म्स में। ठीक है, इसी तरह से डेल फाई बाई डेल टी इंटू एफ प्लस डेल फाई बाई डेल टी इंटू डेल एफ। जब भी डेल टी ज़ीरो को टेंड करेगा तो डेल एफ बाई डेल टी किस में चेंज हो जाएगा, डी एफ बाई डी टी, डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसी तरह से डेल फाई बाई डेल टी किस में चेंज हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, प्लस डी फाई बाई डी टी। जब टी ज़ीरो को टेंड करेगा तो डेल एफ और डेल जी किसको टेंड कर रहे थे, ज़ीरो को, इस केस में डेल एफ और डेल फाई दोनों किसको टेंड करेंगे, ज़ीरो को, सो दिस इज़ ज़ीरो। तो इसको भी आप उसी तरह से करेंगे, फाई एज इट इज़, लेकिन इस बार ये स्केलर है, यहाँ कोई डॉट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, फाई एज ए स्केलर एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ प्लस फाई का डिफरेंशिएशन वेक्टर फंक्शन एफ एज इट इज़। जो स्केलर फंक्शन के लिए हमारे पास रिजल्ट था u इंटू वी को, v का, उसको आप ध्यान रखो कि u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, लेकिन उसको आप अब किस ऑपरेशन से चेंज कर देंगे, डॉट क्रॉस और डायरेक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर से। ठीक है, अगर डॉट है तो आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डॉट सेकंड वेक्टर फंक्शन एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डिफरेंशिएशन, क्रॉस है तो आप वहाँ क्रॉस से रिप्लेस कर देंगे, और डायरेक्ट अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो फाई एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फाई इंटू वेक्टर फंक्शन एफ एज इट इज़। क्लियर है। लास्टली हमारे पास दो ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए भी डिफरेंशिएशन है, डी बाई डी टी ऑफ एफ जी एंड एच। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, एफ क्रॉस
z डॉट h, ये तीनों ही वेक्टर फंक्शंस हैं अब आपके पास। f डॉट एच क्रॉस जी, जी क्रॉस एच भी लिख सकते हैं या f क्रॉस जी डॉट एच, ठीक है। अब ये दो वेक्टर फंक्शंस का प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। अभी अभी हमने रिजल्ट किया था कि डी बाई डी टी ऑफ सम u इंटू वी विल बी f क्रॉस z एज इट इज़ डी बाई डी टी ऑफ h प्लस इस बार डी बाई डी टी ऑफ f क्रॉस z और h एज इट इज़। अब ये फिर से आपके पास दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ f क्रॉस z डॉट डी बाई डी टी ऑफ h प्लस डी बाई डी टी ऑफ f क्रॉस z को हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ f क्रॉस z एज इट इज़ प्लस इस बार f एज इट इज़ डी बाई डी टी ऑफ z एंड डॉट प्रोडक्ट विद h, ठीक है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ f क्रॉस z डॉट डी एच बाई डी टी, इस डॉट को हम प्लस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज़ डी एफ बाई डी टी क्रॉस z डॉट h प्लस f क्रॉस डी जी बाई डी टी डॉट h। तो इसको अगर आप देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरह, तो f और z एज इट इज़, देखिए हमने क्या किया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसमें किन्हीं दो को आपको एज इट इज़ रखना है, थर्ड को डिफरेंशिएट कर देना है डी एच बाई डी टी प्लस सेकेंड में अब क्या करेंगे, किन्हीं दो अदर को, ठीक है, एज इट इज़ रखेंगे। इस बार f को डिफरेंशिएट कर दिया, z और h को एज इट इज़ रखा, f z को एज इट इज़ रखा, z h को एज इट इज़ रखा। इस बार क्या करेंगे, f और h को एज इट इज़ रखेंगे, ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करना है। इस ट्रिपलेट में f का डिफरेंशिएशन z और h एज इट इज़, f का डिफरेंशिएशन z और h एज इट इज़, z का डिफरेंशिएशन f और h एज इट इज़ प्लस h का डिफरेंशिएशन f और z एज इट इज़। ऑर्डर आपको वही रखना है, साइक्लिक ऑर्डर। इसी तरह से आप f क्रॉस z क्रॉस h को भी प्रूव कर सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ f क्रॉस z क्रॉस h। ये आपके लिए होमवर्क है, आप करके देखना। विल बी इक्वल टू, सेम वही रूल यहाँ अप्लाई होगा, डी एफ बाई डी टी, ऑर्डर आपको सेम रखना है, क्रॉस z क्रॉस h प्लस इस बार f एज इट इज़ क्रॉस डी जी बाई डी टी क्रॉस h प्लस f क्रॉस z क्रॉस डी एच बाई डी टी, ठीक है। ये आप प्रूव करके देखना। So now we can find derivative of any of the composite function given in the form of plus, minus, dot product or cross product or scalar triple product or vector triple product, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ सम वेक्टर फंक्शन ऑफ t, वो हमारे पास क्या था इन द कंपोनेंट फॉर्म, दैट इज़ डी बाई डी टी ऑफ f1t, यानी उसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को हम t के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे इंटू आई कैप डी बाई डी टी ऑफ f2t जे कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ f3t के कैप। इसी तरह से आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर, सॉरी डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर ऑफ एफ टी विल बी इक्वल टू डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर f1t आई कैप प्लस डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर f2t जे कैप एंड डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर f3t के कैप। और इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं किसी भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। Now some of the results depending upon the constant vectors. So what is the term constant vector? Since a vector quantity is associated with two characteristics, magnitude and direction, so a vector is said to be constant if it has constant magnitude and a constant direction. कि उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। उसको हम कह देते हैं एज द फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज़ नॉट वेरिएबल। कुछ एग्जांपल्स आपको बुक में भी दे रखे हैं।
कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ भी स्टेट कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास से 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, से दिस इज़ अ वेक्टर f1, ठीक है। दिस इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर सिंस इट्स मैग्नीट्यूड इज, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी दैट इज़ 25 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 38, ठीक है। इट्स डायरेक्शन इज़, इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो वो हमारे पास क्या होगी, 0 0 0 से आप किसको रिलेट कर रहे हैं, पॉइंट 5 2 एंड 3 को, ठीक है। सो दिस आल्सो हैव ए फिक्स डायरेक्शन, दिस इज़ नॉट चेंजेबल, ठीक है। ये वेरिएबल नहीं है आपकी, ये क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन है, पॉइंटिंग फ्रॉम पॉइंट 0 0 0 टू द पॉइंट 5 2 3, ठीक है। दिस इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर। नाउ अगर बात करें वेरिएबल वेक्टर की तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं कि या तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या फिर आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या फिर साइमल्टेनियस चेंज हो सकता है किसमें, डायरेक्शन में एज वेल एज मैग्नीट्यूड में। फॉर एग्जांपल जैसे बुक में आपको गिवन है एक वेक्टर फंक्शन f2t हमने लिया ऑफ द फॉर्म cos t i कैप प्लस sin t j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। एक वेक्टर हमने ले लिया इन द फॉर्म दिस। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ f2t विल बी cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, दैट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, 0 0 0 से पॉइंट करती हुई किसकी तरफ, cos t sin t एंड 0 की तरफ, ठीक है। अब अगर क्योंकि प्लेन वेक्टर की बात कर रहे हैं, z कोऑर्डिनेट दोनों का क्या है, 0, ठीक है। 0 0 को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, cos t एंड sin t से। फॉर t इज़ इक्वल टू π/4, ठीक है। उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी। t इज़ इक्वल टू π/3 के लिए उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी। t इज़ इक्वल टू π/2 के लिए उसकी डायरेक्शन ये रहेगी। यानी क्योंकि उसकी डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वेरिएबल t के ऊपर डिपेंड कर रही है, दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है। थर्ड केस की अगर बात करें कि डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो, सम वेक्टर हमने ले लिया f3t दैट इज़ सम t स्क्वायर i कैप प्लस t j कैप प्लस 3t k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड भी आप जब निकालेंगे वो t के ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें वो भी t के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो दोनों ही क्या है, वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इसका मैग्नीट्यूड भी t की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, t की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी।